अरे हिलाओ मत। अरे भाई ये शूट नहीं कर रहा है। And thank you very much for having me here. I'm here to tell you a little bit about the film that we are here for and what it's all about, who's the cast and crew, so I'll get अरे started. गोविंद कड़क। I'll just wait for everyone to settle down a little bit. अरे क्या कर रहे तुम लोग? काय मार रहे मेरे रिपोर्टर कैमरामैन को? हाँ काय मार रहे? Alright, now it is indeed a very auspicious occasion because the film is called Salam Mumbai, and what better place to talk about it than Mumbai? I myself went to Mumbai, and as you know, गोविंद उसको आवाज देना लाइट वाइट करायला बोला दो यार ब्लू मार रहे उसने ब्लू टोन मार रहे लाइट 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 करना है। It is directed अरे लाइट वाइट रख with music by the ब्लू टोन मार रहे उसको and बोल lyrics by लाइट वाइट वाइट लाइट मारे ना भाई। अरे वाइट मार दे, ये नहीं वाइट है, वाइट नहीं है। ब्लू टोन मार रहे हैं। ठीक है Dr. Shiva अभी ठीक है, Bhargava is an actress and singer of soul fame. अभी ठीक है She's also sung with Mohammed Irfan and Arijit Singh. We've got Sonu Nigam, Shabir Kumar, Hriday Datani of Uranchu from Banjo. अरे कौन सा लाइट है भाई? वाइट हमारा वाइट है Shashwat Tripathi and other people. ये वाइट The film, as you would have noticed on the poster, has got Dia Mirza. We also have an Iranian superstar अरे बैठ जाओ। called Reza Gulzar, who's apparently the Shah Rukh Khan of Iran. So yeah, we've got Poonam Tillon, Mr. Dilip Sahil, who's here with us today. We've got Gulshan Grover and Behrouz Shahil. So a huge round of applause for the star cast, ladies and gentlemen. A little bit louder than that. You can do better. I'll tell you a little bit about what the film is about. Is there anyone here who has watched the film? चेंज कर रहा है भाई। No. Oh, there's a few. Okay, cool. I'll tell you a little bit about what the film is about. So the film obviously has Indian and Iranian connections, right? In the film, we have got Zoya, who's an Indian girl, and Ali, who's an Iranian boy, studying together in a medical college. But they belong to two different worlds, two different cultures, and obviously different religions as well. During their studies, Zoya notices that Ali is very different from the other regular college boys because he studies during the day and he works in a restaurant after going home. Zoya falls in love with Ali, but Zoya's brother wants her to marry Gulshan Grover due to financial reasons. Zoya's mother supports Zoya, but her father and brother are against her love with Ali. Zoya's brother tries to send Ali back to Iran, but fails. Gulshan Grover kidnaps Ali and pressurizes Zoya for marriage, and Zoya tries to get some help from her mother. Should Zoya's mother help her? Does Gulshan take his steps back and does he let go of Ali? Or does Zoya's brother and father agree for this relationship? And all of these answers will be in the film Salam Mumbai. I would like you to put a huge round of applause together for bringing back your host, Arushi Kaur. Thank you. So much, Priya. So ये कहानी है सलाम मुंबई, एक इंडियन गर्ल जोया की जिसे प्यार हो जाता है ईरानी लड़के अली से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कहानी कई काल्पनिक होती है, कई सच्चाई पे मबनी होती है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और रैंप आज के फैशन के सोच पे आधारित एक मैंने अपनी कलम की आवाज़ आप लोगों के दुआओं के सहारे कागज़ के पन्नों पे उतार दी है। रैंप जो एक मॉडल्स अपनी खूबसूरती और अपनी हुस्न के साथ, जो नफासत और नज़ाकत के साथ अपने आप को आपके सामने आना चाहती है, उस रास्ते में कितने कांटे हैं, कितने मुश्किलों का सामना है, उसमें देखने को मिलेगा। उसको डायरेक्ट करेंगे हमारे दोस्त शॉन, जिन्होंने 13 सुरूर डायरेक्ट किया था, और पेन एंड कैमरा प्रोडक्शन उसको प्रेजेंट करेगी महमूद अली साहब। महमूद साहब स्टेज पे आ जाइए। तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच उन खूबसूरत सोच के ऊपर नहीं
Thank you so much. Well, now we'll call back my co-host, Priya. We would like to present to you someone very special. We've got the owner of Pen International, Mr. Mahmood Ali. Before I call him on stage, I'd like to tell you a little bit about him. He's the owner of PNC. He's also the producer of 23 films. As a distributor, he has worked in 193 films, and he's now launching his very own music label, PNCI, on his 25th year in the film industry. So a huge round of applause for Mr. Mahmood Ali. Thank you. आप हमें कुछ बताएंगे अपने म्यूजिक लेबल के बारे में, प्लीज? थैंक यू दोस्तों सबका यहाँ हाजिर होने के लिए। शुरुआत मैंने एज एन राइटर की, बहुत काम किया एज एन कलम से। जब मैं अपनी कंपनी का वजूद रख रहा था तो कादर खान साहब ने कहा कि नाम मैं दूंगा आपको, तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया, पेन एंड कैमरा इंटरनेशनल। शुरुआत मेरी पेन से हुई थी, कैमरा तक पहुंचा हूँ और इंटरनेशनली नाम कमाऊँ, ये उनका नज़रिया था। और आज मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं उनका ख्वाब मैं दिल से, तहे दिल से कादर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरे उस्ताद भी रहे हुए हैं, उनसे मैंने सीखा भी है। जब राइटर था तो एहसास होता था कि यार कहीं ना कहीं कलम चलती है, प्रोड्यूसर मानता नहीं है, अपनी चीज़ें देता है कि ऐसे बनाओ। तो जो चाहता था वो बनाना चाहता था, तो प्रोड्यूसर बना। प्रोड्यूसर बनने के बाद में एहसास हुआ कि यार फिल्म रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूटर करता है और डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि 6 एक्शन डाल दो, 2 रेप डाल दो, 4 आइटम नंबर डाल दो। तो कहीं ना कहीं एहसास होता था यार ऐसी सिनेमा बनाने नहीं है आया मैं, जो मैं बनाना चाहता हूँ वो रिलीज़ करके दिखाओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन की कदम रखा था। फिर म्यूज़िक का एक दौर आया जहाँ पे सारे म्यूज़िक कंपनियाँ कहती है कि आप 1 करोड़ लगाओ और हम 1 करोड़ लगाएंगे। तो एहसास होता था कि यार ये क्या लूट मार मची हुई है। तो कहीं ना कहीं अपना लेबल लॉन्च करना चाहता था मैं। तो ये मुझे फिल्म दिलशाद भाई ने जब म्यूज़िक दिया, तो दिलशाद भाई का म्यूज़िक सुनकर दिल से खुशी हुई कि यार ये फिल्म है, ये सही तरीका है ये फिल्म से अपना म्यूज़िक लेबल लॉन्च करने का। तो इस फिल्म के ज़रिए मैं तहे दिल से गौरवन, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है जवाद नौरोज़ बेगी, दोनों ईरान से है। और दिलशाद भाई का तहे दिल से शुक्रिया, शबीर भाई का दिल से शुक्रिया, और शिवा भारद्वाज जिसने मुझे इंस्पायर किया इस म्यूज़िक लेबल के लिए कि क्यों नहीं अपना म्यूज़िक लेबल आ ले। तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से आ जाते हैं। तो जो कामयाबी मुझे मेरे प्रोडक्शन हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन में मिली, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरे म्यूज़िक लेबल को भी मिले। तो मैं आप लोगों का सब दिल से इल्तिजा करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि इस चीज़ को भी मैं आगे तक लेके जाऊँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेल, महमूद जी के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मंजिल उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच। Thank you. So Priya, you know what's next? I think there's something about a song. Yes, it's music launch, so let's have the launching of the music by the song sung by Voice of Many Hearts, singing together, and he is? Yes, Arijit Singh, so presenting you the first song of the movie, Reza Reza. Thank you. Mr. Yogesh Lakhani ji, please welcome on stage. Also Mr. T.P. Agarwal. Mr. Anil Negi, please. Thank you. And Mr. Chirag Doshi ji, please welcome us on stage. Also Mr. Dilip Tahil, please. Thank you, sir. Mr. Ali Irani. Mr. Sibu Soni ji. Wooden Shoe, Mr. Hriday Gattani.
Finally, the item has come to unveil. Everybody, a huge round of applause on this beautiful ceremony, the music launch of Salaam Mumbai. Congratulations to PNCI, Mr. Mahmood Ali and his complete team, the star cast, the singers, and everybody who has contributed to this wonderful film, Salaam Mumbai. Let me say that it's a huge privilege to have worked in Salaam Mumbai with the Indo-Iranian project. It is the first time that I have worked in a project which has had a collaboration with the wonderful country of Iran and their director and producers. It's a wonderfully written story.
and it was a privilege to be part of this very prestigious and wonderful project, and I hope that there will be many more associations with Iran and India, and we take this chapter forward as we go along. Gurban, Mr. Gurban, the director is here, the writer, and it was a pleasure working with the Iranian crew. मेरा किरदार है इसमें, मैं लड़की का बाप हूँ और उनका मतलब लड़की जो है, लड़का ईरान से आता है तो उनके बीच में इश्क होता है जो हम मानते नहीं हैं। हम कहते हैं कि भैया ये मतलब अलग ख़ानदान के हैं, अलग जगह के हैं, तो वो एक मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अंत में, अब मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन अंत में फिर वो सब समझौता हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। बाकी आप फिल्म देख के, जब फिल्म यहाँ रिलीज़ होगी तो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। और ईरानियन जो हमारे भाई जो ईरान से आए हैं, उनके साथ काम करने का भी बहुत मज़ा आया और बहुत ही मतलब अच्छे और स्किल्ड लोग हैं। और वो मतलब वो हमारे सिनेमा से थोड़ी अलग फिल्में बनाते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत खुशी की बात हुई कि अलग किस्म की फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। जैसे आज म्यूजिक रिलीज फंक्शन था, तो ये क्या दोनों कंट्री के थोड़ा कल्चर को और इट्स अ लव स्टोरी, तो यू गेट टू सी द एमलगेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज, द फ्लेवर ऑफ इवन ईरान एंड मुंबई का जो होगा उसमें। ऐसा है कि इसकी सेटिंग जो पिक्चर की सेटिंग है सिर्फ बॉम्बे में है, तो लड़का ईरान से आता है, लेकिन इसका जैसे सलाम मुंबई उसका नाम है, तो उसकी पूरी सेटिंग जो है मुंबई में, तो ये मतलब ईरान की तरफ से हमारी मुंबई दिखाने मतलब दिखाते हैं इस पिक्चर में, और बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। और इनका जो नज़रिया है, जो हमारे बॉम्बे में जो ऐसी कई चीज़ें होती जो हम नोटिस नहीं करते, लेकिन इन्होंने ये सब मतलब इस फिल्म में बहुत खूबसूरती से ऐड किया है। पॉलिटिकली बात करते हो, एक्टिवली गेटिंग इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स। सर ये समय नहीं है अभी पॉलिटिकल बात करने का। हाँ ये सच है कि मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन ये म्यूज़िक लॉन्च है और कहीं मतलब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ज़रूर चर्चा करेंगे आप होगा। लेकिन आज सलाम मुंबई का म्यूज़िक लॉन्च है। मैं चाहूँगा कि आप सब ये कैसेट और ये गाने सुने, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हाँ, आने वाली फिल्म मशीन में मशीन, हाँ, एक मेरी फीचर फिल्म आ रही है जिन्होंने अब्बास मस्तान साहब ने बनाई है फिल्म। उनका लड़का मुस्तफ़ा अब्बास साहब के जो उनके लड़के हैं वो उसमें लॉन्च किए जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया काम किया उसने। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। अब्बास मस्तान साहब के साथ तो कई फिल्में की हैं मैंने, लेकिन अब जब उनका लड़का लॉन्च हो रहा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड उम्मीद है और कि ये पिक्चर बहुत चलेगी और आप लोग सब देखिएगा। नया लड़का, उसको सपोर्ट कीजिए, बहुत बढ़िया काम किया उसने। और ये पिक्चर रिलीज़ होने वाली है मार्च में, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सब इस पिक्चर को ज़रूर देखिए और कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सलाम मुंबई एक ईरानी लड़के और हिंदुस्तानी लड़की की मोहब्बत की कहानी है। ये फिल्म मोहब्बत देती है, मोहब्बत सिखाती है, मोहब्बत बांटती है। और सच बोलूँ तो ये फिल्म मेरे ज़िंदगी के बहुत करीब है। मुझे इसमें कहीं ना कहीं अपनी अक्स नज़र आया, तो इसको मैंने रिलीज़ इस बड़े पैमाने और ये म्यूज़िक लेवल का भी लॉन्च का जो मुझे था, जब शिवाजी ने मेरे साथ गाना गाया तो मैंने कहा था कि यार किसी को और प्रमोट करने जाएंगे तो अरिजीत के साथ में कोई और सिंगर, तो क्यों ना हम लोग हमारा अपना लेवल लॉन्च करें। लोगों ने पहले भी, इससे पहले लोगों ने किया और सक्सेस हुए। गुलशन कुमार ने टी सीरीज़ लॉन्च की थी तो अनुराधा पौडवाल जी के साथ में किया था, तो वही सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लक फैक्टर है, हाँ, शिवाजी मेरा लक फैक्टर है। तो जैसे हॉलीवुड के साथ मिलके फिल्म बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, हाँ जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ेदार एक्सपीरियंस है। बहुत प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, सारा काम प्रोफेशनल होता है। जो वक्त पे कहते हैं उस वक्त पे काम करते हैं। बहुत बड़ी टीम आई थी ईरान से यहाँ पे काम करने के लिए, हॉलीवुड से काफ़ी लोग आए थे, फॉरेन टीम आई थी, तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जो वक्त देते थे वो वक्त पे डिलीवर करते थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब सिनेमा बनाए तो जो हम सोच रहे हैं, जो डे 1 पे हमने प्लान किया और डे एंड पे वो दिख कर आए। इस फिल्म के
द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश मोहब्बत है और काबिलियत है, बस इतना ही है कि लोग काबिल समझे मुझे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। और शिवा जी से मैं चाहूँगा एक गाना जो रेजा रेजा उन्होंने गाया है वो मीडिया के सामने एक बार वापस से। रेजा रेजा मेरा साया जाने तू है कहाँ, रेजा रेजा मेरा साया जाने तू ही है मेरा। थैंक यू। अब देखिए हर सफलता के पीछे किसी न किसी लड़की का हाथ होता है। तो फिलहाल मेरे सफलता के पीछे मैडम का हाथ है। अब जो मेरे पीछे है उसको सामने लाने की कोशिश कर। मैं एक सवाल और आपसे। हाँ जी। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं जी, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। जी जी। तो उन लोगों के लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए मैं, हाँ जी, मैं मेहनत इंसान की रंग लाती है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से अगर ईमानदार मेहनत होती है, मेहनत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बिल्कुल उम्मीद नहीं खोना है कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत काम हो रहा है इंडस्ट्री में, बहुत लोग आगे आ रहे हैं, तो बहुत काम है आगे। तो ये उम्मीद के कौन देगा मुझे, क्या देगा, कोई सोच के नहीं आता है यहाँ पे कि मुझे यशराज देगा या ये देगा। हर आदमी अपनी मेहनत करता है और अपना मस्त। थैंक यू सर। मुंबई का जो भी अभी मैंने गाना अभी तक सुना, दोनों गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये सब गाना एंड फिल्म। और पूरा टीम के लिए मेरे तरफ से बहुत 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 बधाई है। बेस्ट विशेस। गानों की अगर बात करें, किस तरह के गाने और कितने गाने कितने गाने इस फिल्म में होने वाले हैं? नहीं, मैंने तो फिलहाल आज 2 ही गाना सुना, तो आगे की मुझे इतना पता नहीं है। अगर आपके गानों की बात करें तो कोई एक लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहो? जी, मेरा लास्ट मूवी जिस गाने से मेरी पहचान हुई है, सो उससे मैं वेलकम बैक मूवी से पार्टी वाला सॉन्ग में गा के थोड़ा सुना देती हूँ। सीने में तुझे महसूस किया है एक, तू ही बसा है मेरे कश कश में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू, मेरी नस नस में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू ही मेरी नस नस में। थैंक यू वेरी। नाम ही इतना हिट है कि सलाम मुंबई, मतलब सलाम मुंबई नाम आते ही एकदम आदमी चार्ज हो जाता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो किसी भी माध्यम में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो। और जब ये इसका गाना मैंने सुना, सलाम मुंबई का टाइटल सॉन्ग, तो मैंने पहली ही लाइन में ये डिसाइड कर लिया कि ये गाना सुपर हिट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगा, मेरी ऐसी राय है कि ये गाना जितने लोग सुनेंगे उनके पैर थिरकेंगे और वो अपने फंक्शन में, डिस्को में, पब में इस गाने को बजाएंगे और वाकई दिल से एक बार मुंबई को सलाम करेंगे। सलाम मुंबई की। हमारी भी शुभकामनाएं जी। काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी आगे सकते हैं। भक्तजनों, सलाम मुंबई की भावनाओं को समझो और यही गाना सुनाओ अगर आपके को सताए कोई गम जो। नवाब भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी
कीमती समय और इतने बिजी शेड्यूल में निकाल कर भी यहाँ हमारी फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ करना है। आई एम रियली थैंक्सफुल टू नवाब भाई एंड दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, पूरा मुंबई उथल पुथल हो रखा, वहाँ से फिर भी निकाल कर यहाँ आना, कुलाबा से आ रहे हैं डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, 2 लफ्ज़ हमारी फिल्म के लिए बोलना चाहूँगा। नहीं, सलाम मुंबई फिल्म बनाई गई है, सब्जेक्ट तो निश्चित रूप से मुंबई रिलेटेड होगा। हमें लगता है कि जिस तरह से शुरुआत हुई है, आज म्यूज़िक का रिलीज़ हुआ है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि फिल्म मेहनत करके बनाई गई है, फिल्म हिट हो, लोग देखें और कामयाबी की तरफ सभी